Good morning, Good morning. Sridharji. Today we are in a very special topic to cover and discuss. It's a fine morning in Surat. So we are just in front of Mr. Sridhar Bhagavat. He is a organizational development consultant (ODC). So it's a pleasure to be with you and discuss on few points. So I think we can start straight away. Sure, definitely. So in present day scenario, business scenario, we have a lot of segments. So today we'll be covering up family owned business. Yes, and I think it's very interesting. Family-owned businesses actually are 75% of Indian businesses. Yeah. If you look from Adani, Ambani, to look at all Birlas, every Tatas, everybody is family-owned businesses. And 75% of Indian businesses are family-owned businesses. It's a big category. While we talk about multinational companies, you talk about modern companies, you have, I mean, you have Infosys, you have Wipro and all. But in turn, if you look down on all are family-owned businesses, because some of them will have a different holding pattern of ownership, but 90% of them have a family directors who are running the business on that. And I think family-owned businesses are very interesting because they bring entrepreneurial skills, they bring capital, and they generate a huge amount of employment in India. So whether you like it or not, family and businesses are reality in India, and they do successfully business. That's fine. And now there comes the focal of a discussions. What are the challenges and problems I think faced in the FOB? biggest challenge a family-owned business faces is sustainability. Because when you have a business model, it has a formula, it has a success, it has technology, everything which is changing fast. So a family-owned business has a biggest problem in transition to next level. Let's say, for example, look at Birlas. In 40s, 50s, Birlas were the top business houses. Reliance was nowhere, Adani was nowhere. You had multiple companies which were nowhere on that. Birlas had the advantage of capital, advantage of technology, advantage of government involvement and everything on that. Today, if you look at it, Birla hardly counts. So that shows the transition that in a family owned business, the environment changes. Are you able to adapt? Are you able to consolidate? If you look at Reliance, Reliance is consolidating. Adani is consolidating. In family owned business, consolidation makes a huge change. So biggest challenge I think comes to family owned business scalability. Because if there is an entrepreneur who had started a business, his biggest challenge comes, there's a limited amount of knowledge and resources he has got. So in Indian environment, there are thousands of family owned businesses which are run by mom and pop. That means there is a family member who run 3, 4 family members who run the business. There is a limitation to which they can grow because they have a capital available. They have some technology, they have some skill sets and they have networking. But beyond that, they can't grow. So there are multiple family owned businesses which are 100 crore, 50 crore, 70 crore, 80 crore on that. And they have a huge potential, but can they scale up? The biggest challenge, I think, is the scalability. Whether you go MSME sectors, you go into large scale businesses also on that. Everybody is struggling and looking at scalability on that. So that scalability is something which is the biggest challenge. So this is one. I mean, I want a little bit elaboration on that. I mean, if I ask you a question of, can you identify me the challenges? There are 5 challenges and problems of family-owned business. I can count 100 challenges, but I think we'll stick to 5 today. Yeah. One, like I said, scalability. Second comes on transition. Our biggest challenge in family-owned business comes on that owner doesn't retire and his children are not able to take over on that. Second, in transition, another part comes on it, the change. There is a set of business practices what the owner does and his younger generation want to change. They are more tuned into modern business theories. They're more tuned into modern business practices. They have capital. They want to invest in new businesses on that. While the old ownership generation is not ready to change. That's a business challenge. Second. Third comes on that the old generation has not much faith in processes and modern business management and processes on that. They are still ready to do work without billing. They're still ready to do work without doing a lot of cash businesses. So the adaptability of technology, adaptability of modern management processes is something which is a third biggest challenge.
Fourth biggest challenge comes on that their formula of getting people who are not much trained and training themselves. That was something which is happening 50 years back. Now today you need experts. If you have a chemical business, you need people who are subject matter experts in chemistry. If you are into finance and investment, you need analytics. You need CAs. You need all those things. So when you have family owned business where the person himself has capital but doesn't have a subject matter expert, his ability to engage these high end intelligent resources is a challenge. Fifth, I think the most comes on that most family owned businesses shy of social media. I mean, you don't see hardly any family businesses which are talking businesses, and Rahul Bajaj used to talk about a lot. There are other Kumar Mangalam Bingla will engage. Other business will engage on that, but still there are 80% of businesses which are shy of engaging social media. They're still in the backroom management and backroom boys on that. I know some of my clients who are doing 4,000 crore, 5,000 crore on that. They would not like to come on social media. They would like to come to share a platform. They would not like to share their things. They would like to operate on the backside. I think these are 5 things which are critical, which will transform the Indian family owned businesses into a next level. That's very good. I mean, see, the problems are many, so we are interested to identify few of them. I mean, sequentially, the 5 of them has been discussed, and now we'll go to the how FOB can be modernized in present day context, considering the sustainability at least say 25 years or for 50 years, and with respect to engagement of the next generations. Okay. I think FOBs have to get out of the capital is the king mode. I mean, if you look at 2024, it is not the capital which is important. Capital is available on that. What is important? Technology. What is important is a leadership. What is important is the management. These are key things, 3-4 things which make and break any business on that. So 50 years back, capital was important. Now capital is not there. I mean, if you look at the latest news, what you wrote, there are some IIT guys who had created a rocket and almost sent a rocket to the space. Now, can you imagine 20 years back that any private person will have that technology, have that funding, have that power and permission to fly a rocket? You will not get it. So that is, now today people are manufacturing drones. There are companies which are manufacturing drones, and these are all first generation entrepreneurs. Because, so here, now if you look at it, technology is king, not the capital. So there are more capital available in the market to be invested in this business ideas on that. So what is important? Now again, when you have technology, you have skills, you have capital. So what is the critical thing which will make a business run? Is a leadership. Because you can get a very good idea, you can get a capital, you can get people also. But are you able to hold them together for a longer time to sustain that business model, to scale up and generate profits? So most family-owned business need to get and accepted on that. Among the 4 key components of any business, capital is 1. People are 2nd. Good management practice is 3rd. 4th is leadership. These 3-4 things, out of these 4 things, you need to have 2 to 3 things, then only the success formula works. तो खाली पैसे से धंधा चलेगा नहीं चल सकता है. धंधे के लिए जरूरी है आपको कि आपके पास पैसा हो, धंधे के लिए जरूरी है आपके अच्छी लीडरशिप हो, धंधे के लिए जरूरी है आपके प्रोसेसेस हो, और धंधे के लिए जरूरी है आपके अच्छे लोग हो आपके पास. अच्छे लोगों से मतलब मेरे क्या बोल सकते हैं, गांव वाले नहीं होना चाहिए, अच्छे विश्वास वाले नहीं होना चाहिए. अच्छे लोगों का जो पुराना फॉर्मूला था कि मेरे विश्वास वाला बंदा है, मेरे गांव का बंदा है, मेरा रिलेटिव है, इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूं, नहीं. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में है वो आ रहा है कि ये जो पुराने आपने भर के रखे हुए अपनी कंपनियों में, जो गांव से आए हुए हैं, ससुराल से आए हुए हैं, पहचान वाले हैं, रिश्तेदार में हैं, इनका क्या करें? क्योंकि उनकी स्केलेबिलिटी नहीं हो सकती है, उनमें से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है. तो अब उन लोगों को कैसे आप यूज करें? अब ये फैमिली ओल्ड बिजनेसेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको फेज आउट कैसे करें. उनकी सैलरीज एक लेवल तक पहुंच गई है, वो विश्वास वाले लोग हैं, लेकिन उस विश्वास का मैं करूं क्या? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है बंदा, मेरे को दूसरे रोल में डाल नहीं सकता उसको मैं. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर है कि जो पुराना मॉडल है मेरा बिजनेस का, उसको मैं मॉडिफाई कैसे करूं. और वो मॉडिफाई करना जरूरी है आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो, वरना आपका बिजनेस जो है वो जल्दी ही आईसीयू में जाएगा और जल्दी आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे. That's very good. Now, if I ask you as a single case studies, I mean, who might have followed these things and become
successful in this way? I mean, you can we take a case study so that what you talked about, it makes sense, but to give an example to the audience. I'll share an example. Yeah. I have one of my clients who's a second generation entrepreneur. The family had capital. They were into trading. From there, they went into manufacturing to complete the supply chain. So now they manufacture and trade both that part of it. Now, when initially when they set up the plants, they had family members who will go and stay in the plant, look at the entire operations, manage things. They are not subject matter experts. Understand? They get technological people. They stand on their heads and get things done. Yeah. So second generation managed everything very well on that. The capital was deployed, efficiencies were there, everything was there on that. They trusted people and worked on it. Now comes the third generation. The third generation all have been well fed. They don't have that बोलते ना आग नहीं है उनमें. अब जैसे पहले जनरेशन जाती थी वहां पर हफ्ते भर रुकती थी, ये लोग जाते हैं सुबह जाते शाम को वापस आ जाते हैं. तो इनकी पकड़ उतनी नहीं है. तो पहले जितने लोगों में अब क्या होता था, पहले जनरेशन जाती थी वहां पर रातों रुकते थे खाने पे, तो सारे जितने आपके मैनेजर्स ने सबको बुलाते थे, दारू पार्टी होगी, खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनके साथ बंधन था. तो एक आपका ट्रस्ट था उनके ऊपर, आप उन पे विश्वास रखते थे, आप उनको एंगेज करते, सब कुछ करते थे. अब जो थर्ड जनरेशन आई हुई है वो सुबह जाती है शाम को पता जाती है. अब उनका चैलेंज ये पर है कि उनके लोग नहीं हैं. तो जो पुराना मॉडल था, पुराने मॉडल में क्या होता था, सारी इंफॉर्मेशन रोज की रोज आपको आती थी, कौन क्या कर रहा है सबका. तो आपने एक नेटवर्क बना रखा था जिससे इंफॉर्मेशन आपके साथ आती है. आपने नेटवर्क बनाया था, लोग एक दूसरे को बताते हैं आपका. तो आपका लोगों पे कंट्रोल था. आप लोगों को अपने कंट्रोल के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा देते थे, जो आपके खबरी हैं, जो आपके संभालने वाले हैं, सब कुछ आपका पुराना मॉडल था. अब आप सोचिए नई जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन आई है, जो हार्डली उन लोगों को जानती है. वो जानती है क्योंकि उनमें से कुछ लोग जाके 3 महीने उन्होंने इंटर्नशिप किया, क्योंकि पापा ने बोला था कि आप 3 महीने रही, 3 महीने रुके, इंटर्नशिप किया. वो प्रोसेस जानते हैं, वो सब जानते हैं. बट अभी जब नया एम्प्लॉय आएगा उसका एंगेजमेंट लेवल डिफरेंट है. जो नए लोग आएंगे ट्रांजिशन में, वो आपके अपने लोग नहीं है. वो लोग वो नहीं है जिनको आपने पैसा सा दिया, सब कुछ किया, आपने ग्रोथ किया हुआ है. अगर आपका उनसे रिलेशनशिप नहीं है और आपकी मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं है, तो आपका रिटेंशन नहीं होता है. तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी जो आपके करंट डायरेक्टर्स होंगे वो एयर कंडीशन बोर्ड रूम में बैठ के डायरेक्शन देते हैं. वो जमीन पे उतरने वाले नहीं है. और जब वो जमीन पे नहीं उतरेंगे तो उनकी पकड़ नहीं होगी बिजनेस के ऊपर, उनकी पकड़ फैमिली नहीं होगी बैठ के. तो अगर आपके पास अच्छे लीडर्स नहीं होंगे जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके कैपिटल को प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, तो आपका बिगेस्ट चैलेंज वहां पर आएगा कि आपका खुद का अपने बिजनेस पे कंट्रोल नहीं होगा. तो आपको वहां पर मॉडर्नाइज करना पड़ेगा. आपको बिजनेस में सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस लाने पड़ेंगे, रिपोर्टिंग लाने पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस लोग लेके आने पड़ेंगे. आप सब काम खुद नहीं कर सकते थे. पहले का फॉर्मूला था कि लाला जी का ब्रेन है, हमको सिर्फ एक्स्ट्रा हाथ चाहिए. तो लाला जी ऐसे लोगों को करते थे जो आपने जितना कहा उतना करो. तो वो जो आपका बिजनेस मॉडल था वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको वो लोग चाहिए जो सोच सके, आपको वो लोग चाहिए जो सोच के कर भी सके, और आपको वो लोग चाहिए जो जिम्मेदारी ले सके और अपनी ओनरशिप दिखा सके. तो यहाँ पे एक की पॉइंट आता ओनरशिप का. तो अभी तक ओनरशिप लाला जी के पास थी. अब जब ईसॉप्स लाने पड़ेंगे, सब लाने पड़ेंगे, आपको ओनरशिप भी बांटनी पड़ेगी. क्यों वो आदमी अपना जिंदगी लगाएगा, क्यों आदमी अपना मेहनत लगाएगा उसमें, अगर उसका अपना कुछ फायदा नहीं होगा. तो आप उसको फायदा कैसे देते हैं? आप उसको उसकी सैलरीज देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, आप उसकी फैमिली की टेक केयर करते हैं, साथ में आप उसको उसका उस बिजनेस में कुछ परसेंटेज देते हैं, तब जाके उसको लगता है. जब ये ईसॉप्स वगैरह आप मॉडर्न जो थ्योरीज हैं वो लेके आओगे कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईसॉप होगा, वेरिएबल पेमेंट होगा, आपको इंसेंटिव्स होंगे, तब जाके आप नए लोगों को ले पाओगे. तब जाके आप नए एमबीएस लाओगे, आईआईटी वाले लेके आओगे, सब लोगों को लेके आओगे, तब जाके आप वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे. Yeah, I mean, you are absolutely right, but there are some certain clarifications I want to focus on. You are vertical wise, you are getting bringing the experts, very nice. But उसमें जो और मेरे को थोड़ा elaboration चाहिए उसमें. Whether the family person comes in the vertical or from outside, that is based on my requirements of the business, right? Now ये तो हो गया. अब इसका रिटेंशन एंड एंगेजमेंट तभी आएगा जब उसको दिखाई देगा, वैल्यू एडिशन के साथ उसका भी अपना दिखाई देगा. बट इसमें मैं और थोड़ा you should enlighten us in a way
क्योंकि जो भी आदमी आएगा, क्या बोलूं उसको, ही विल रन इट, बट इसमें नॉर्मली एज अ फैमिली ओन बिजनेस, जैसे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये करता है, उसको जो इंश्योर कैसे करे कि मैं तो आपको ले रहा हूँ एज अ वर्टिकल हेड, बट आई वांट सिमिलरली दैट ट्रांजिशन, आई मीन एंगेजमेंट ऑफ माय थिंग्स, सो दैट साथ साथ चल के आपका सीख ले। मैंने ऑप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। नहीं, सीट कौन ले? एक्सपर्ट ले कि आपका फैमिली मेंबर सीट ले? नो एक्सपर्ट, but I want a symbiotically they go on, so that if you are not there, then he takes over. I mean, देखिए, एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, प्रोसेस ड्रिवन होता है। अभी फॉर एग्जांपल है, हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं, राइट? अभी सक्सेशन प्लानिंग को लोग अलग अलग मीनिंग में लेते हैं। अगर एक सक्सेशन प्लानिंग देखा तो लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अभी आप बिजनेस रन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बेटा या आपका बेटी आपके बिजनेस में स्टेप इन हो जाए, वो एक सक्सेशन प्लानिंग हो गया। अभी समझो आपके पास में 3 बेटे हैं, तीनों में किसको सीईओ बनाना है, किसको कौन सा बिजनेस देना है, किसको क्या करना है, वो उसके ऊपर है। तीनों सेम नहीं है, पिता सेम होगा, माँ सेम होगा, लेकिन तीनों के गुण होंगे, उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। अगर उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग होगी तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? वो सक्सेशन प्लानिंग आपका अपना प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेशन प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है कि वहां पे की रोल्स हैं, की रोल्स में आपको नेक्स्ट लेवल के बंदे कब आ सकेंगे। रिटायरमेंट होगा आपके लोगों का, आपके नई टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ेगी, आपको नए लोग चाहिए पड़ेंगे, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लियर रिटर्न जॉब रोल्स होते हैं, क्लियर रिटर्न आपके KRA KPIs होते हैं। आप एक चीज देखिए, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट अपनी जगह होता है, लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डिलीवरी भी होती है, जिसके हिसाब से चलता है, जिसके हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं कंट्रीब्यूशन को। अभी पुराने जमाने में क्या होता था, अब वो आदमी गांव से आप आदमी लाते हो, 4 गलतियां भी करे, सब कुछ करेगा, आपको वो भी एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। आप उसको इंस्ट्रक्शन देते थे, आप यहां से जाइए, शर्मा जी के यहाँ जाइए, ये चेक दीजिए, वहां से माल उठा के लेके आइए। कैन आई इंटरप्ट? या डू यू थिंक इट्स अ डेलीगेशन on the part of vertical owners, or you have everything is written and how it is, the process is written, well defined, and he has to just follow it? No, earlier control, it's not delegation, it's a control. It's over the process. How much you want to control over the process. So when you have a small thing, you can control everything. When you have a larger thing, you are not available everywhere. Like I give example on the client where the first generation used to be camp up there for months to get the plant ready. Second generation used to stay for 1 week, 10 days to see things happening and everything else, right? Third generation goes for a day. Now first generation had everything, foundation से लेके प्रॉब्लम से लेके लोकल सरपंच पंचायत सब मालूम था उनको, फर्स्ट जनरेशन को। सेकेंड जनरेशन को यूनियन लीडर्स का प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, सब कुछ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब कुछ है, उन्होंने नेटवर्क बना के रखा हुआ उनका पूरा। उनको कलेक्टर मालूम है, कमिश्नर मालूम है, लेबर कमिश्नर मालूम है, क्योंकि उन सबसे मिलकर नेटवर्किंग की उन्होंने। थर्ड जनरेशन जब एक दिन के लिए जाएगा तो उसका नेटवर्किंग कहाँ बिल्टअप होगा, तो कंट्रोल कहाँ कर सकता है? तो जिस अमाउंट ऑफ कंट्रोल फर्स्ट जनरेशन ने किया, जो अमाउंट ऑफ कंट्रोल सेकंड जनरेशन किया, थर्ड जनरेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है अमाउंट ऑफ कंट्रोल करना। तो थर्ड जनरेशन को डिपेंडेंसी क्रिएट होती है अपने लीडरशिप टीम के ऊपर। तो आपके पास प्रोडक्शन हेड है, आपके पास परचेस हेड है, आपके पास में प्लांट हेड है, आपके पास में आपका क्या बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग वाला है, जो आपका डिस्पैच वाला है। ये सब चीजें आपकी क्रिटिकल हो गई हैं। ये लोग अगर आपको टाइम टू टाइम डेटा नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप नहीं मैनेज कर सकते। अच्छा, अगर आप सब कंट्रोल आपके पास रखेंगे तो वो लोग क्यों करेंगे फिर? जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वहां पर लोग साहब ने बोला इसलिए करते हैं। उस काम करने से नुकसान होगा वो नहीं फायदा पता, उनको फर्क नहीं पड़ता कि नुकसान होगा फायदा होगा। वो सिर्फ साहब ने बोला है ये मैसेज पास ऑन करते हैं, वो सर ने बोला वो कर देते हैं, तो वो कहीं भी ओन नहीं करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के आया, जिस ढंग से हमारा पूरा लार्ज स्केल बन रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आपको ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ वर्क, ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स, ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो आज जब आप इंसेंटिव की बात करते हैं, ईसॉप की बात करते हैं, आप उनको रिटेंशन बोनस की बात करते हैं, सारी चीज क्या करते हैं, आप प्रॉफिट में शेयरिंग कर रहे हैं। पहले आपका प्रॉफिट शेयरिंग फंडा था ही नहीं। पहले क्या फंडा था कि आप उनके सुख दुख में साथी हो, उनकी शादी होगी आप उनको लोन दे दोगे, उनका कुछ हो गया, डेथ हो गया, आपने कुछ पैसा दे दिया है। तो आपका कंसेप्ट बहुत डिफरेंट था, जो मॉडर्न कंसेप्ट में नहीं बैठता है।
मॉडर्न में अगर आप बिठाओगे उसको तो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि आप हर जगह नहीं हो सकते हो और हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो पहले आप कर पाते थे, क्योंकि आपका बिजनेस छोटा था। अगर आपको सिंगल दुकान रखनी है, किराने की दुकान मेंटेन करनी है, आप सब कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको एक मॉडर्न बिजनेस करना है जहां पर आपके प्लांट होंगे, जहां पे सेल्स ऑफिस होगी, जहां पर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, और आप चाहते हो कि लोग काम करें, आप काम नहीं करें, फिर आपको मॉडर्न कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, आपको मॉडर्न मैनेजमेंट लानी पड़ेगी, आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, आपको आपका खुद का रोल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कई ओनरशिप बिजनेसेस को जानता हूं जहां पर उनके पास में ना टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, ना उनके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, उनके पास क्या है, कैपिटल है। उन्होंने अच्छे लोग देखे, अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर देखी, टेक्नोलॉजी देखी, उन्हें अच्छे एक्सपर्ट्स देखे और उन्होंने बिजनेस चलाने को उनको दिया है। सो दे आर ओनली ब्रिंगिंग प्रॉफिट, they are only taking profit from the business, they are giving entire power to run by the CEO। तो आप मॉडर्न सीईओ लेके आते हैं, आप मॉडर्न सीईओ से बिजनेस चलाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। यू आर एनेबलिंग द एक्सपर्ट एंड द लीडर एंड द टेक्नोलॉजी टू वर्क फॉर यू। तो उसमें आप ये चेक नहीं कर सकते कि प्यून टाइम पे आया नहीं आया था, उसमें सिक्योरिटी बराबर सो रहा नहीं सोता, वो काम आपका नहीं है। फिर तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपको वो पावर छोड़नी पड़ेगी, आपको मैनेजर्स को वो पावर देनी पड़ेगी, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा और उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। देखिए डेलीगेट बहुत आसान है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज। वो आएगा जब आप डॉक्यूमेंटेड करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंटेड करेंगे, हर चीज लिख के रखेंगे, तब आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि आप उस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसको पावर दे रहे हैं, आप उसको अकाउंटेबल बना रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि आपने ये चीजें आपने कमिट किया था, या आप कर रहे नहीं कर रहे। गैप एनालिसिस। यस। तो आप एक सीईओ को जब देते हैं कि मैं आपको फुल पावर दे रहा हूं, आपको इतना सैलरी दे रहा हूं, आपको ये टीम दे रहा हूं, आपको ये एक्सपर्टाइज दे रहा हूं, और आप कमिट कर रहे हैं कि मुझे आप 20% ग्रोथ दिखाएंगे 3 years में, देन दैट सीईओ कम्स विद अ होल प्लान। व्हाट यू डू इज दैट कि आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केट का 30-40 साल का, आप उसको गाइड करते हैं सीईओ को, आप कोच करते हैं सीईओ को कि हाँ ये है, आप उसको एनेबल करते हैं। जहां सीईओ को डिफिकल्टी आएगी, कल सीईओ को जाना है बैंक में लोन लेने के लिए, ओवरड्राफ्ट लेने के लिए, डेफिनेटली बैंक उनको जानता नहीं है सीईओ को, वो सीईओ क्या है, एक कर्मचारी है आपका। जब आप जाओगे बैंक में सीईओ के साथ में, तो आपका वेट अलग होगा, क्योंकि वो जानता है कि आप बिजनेस ओनर हैं, वो जानता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपका कैपिटल कितना है, और साथ में आपकी ओवरऑल मार्केट में क्या वैल्यू है। तो वो जो आपको लोन देगा वो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर देगा। सीईओ विल नॉट हैव अ क्रेडिबिलिटी, ही विल हैव अ क्रेडिबिलिटी ऑफ अ एक्सपर्ट एम्प्लॉय, knowledge एन एक्सपर्ट लीडर। ही विल नॉट, नोबडी विल पे मनी टू हिम, मनी आपको देगा श्योरिटी के ऊपर, जो श्योरिटी कैपिटल में आप प्रोवाइड करते हो। सो दैट इज वेयर यू नीड टू सी दैट कि व्हाट यू ब्रिंग टू द बिजनेस एंड हाउ डू यू स्टेप बैक फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस। दैट इज मॉडर्न बिजनेस। अगर डे टू डे ऑपरेशंस में कौन खाने पे जा रहा है, प्यून कौन जाएगा, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन सी गाड़ी लेके, अगर ये सब आप करने लगेंगे तो फिर आप बिजनेस नहीं चला सकते। That's the difference. That's fantastic. I mean, now just the thing is the challenges and problems are many. According to the problem and challenges, there are solutions are many, and we have discussed few of them. Just I request Sridhar ji, just summarize the things what we have discussed about it. I think one biggest thing what we all need to accept is the business environment is changing. Technology is changing faster. If you want to do business, you have to adapt. You have to change. तो जो आपके 100 साल पुरानी जो आपकी मान्यताएं थी, 100 साल पुरानी जो मेथड्स हैं, 50 साल पुराने मेथड्स हैं, 30 साल पुराने मेथड्स हैं, वो आपको नहीं चल पाएंगे। आज अगर आप देखते हैं तो एंड्रॉइड फोन्स देखिए, आप टेक्नोलॉजी देखिए, आपका 3D प्रिंटिंग आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है आज के दिन में। तो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। आप पसंद करें ना करें, अगर आपको बिजनेस करना है नए एनवायरनमेंट में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करना है, किस पेस पे करना है, किस स्पीड पे करना है, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। आप नहीं चेंज करेंगे तो आप बिजनेस में नहीं रह पाएंगे, ये फैक्ट है। तो आपको चेंज करना ही है। आप किस तरह से चेंज करेंगे, कितना चेंज करेंगे, वो आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कितना लंबा आपका फ्यूचर होगा, कितना लंबा बिजनेस चला पाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं चेंज अपने आप को, फिर आपके लिए स्ट्रगल बहुत होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को रिटर्न नहीं कर पाएंगे, नए लोग हायर नहीं कर पाएंगे, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो तकलीफ होने वाली है। तो आपको चेंज होने की माइंडसेट लेनी पड़ेगी।
आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।